Hello friends and my dear students, welcome in my YouTube channel. I hope you all are fine and studying well. Due to demand of my students that they have told that kindly make a video on the chapter 3 of ICSE board of class 7, that is the cell. So in this chapter we will study that very smallest unit, the basic unit of life, that is cell, and all living things in the universe that is made up with the cell. I'm talking very clearly living things, not non-living. You have to keep in mind that is living thing. So just like a bricks is the smallest unit of a building, for constructing a building the smallest unit, that is a cell. So similarly, just like that, for the plant and animals, the cell are the smallest unit, where um, these things are like a body of a human being, a body of a animal or a plant. It is made up with the cell, and there are millions and trillions of cells are there. And under this we will study these few topics. इसके अंदर हम लोग इतने सारे टॉपिक्स डील करेंगे. दैट इज सेल, द बेसिक यूनिट, नंबर, शेप, साइज, a basic structure of cell, plant cell, organelles and their function, animal cell. Without wasting time, let's start, because it's very lengthy chapter. Number. Okay, number, shape and size we will study. So all the living organisms are made up of cell, but the number of cells vary from organisms to another organisms. So it vary. For example, if you talk about amoeba, अगर हम अमीबा की बात करें तो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलके बना. उसमें कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ सेल यूनी में सिंगल. Okay, some organisms like plants and animals are made up of just one cell. Means there are, it is giving example, they are single cell, while other organisms are made up of large number of cells. And depending on the number of cells in the body and organisms, they are called unicellular or multicellular. Okay, so according to the number that is present in their body, so according to number it is categorized into unicellular means one, uni means one, cellular means cell, they are made up with the cell, and multicellular. So these all are the example, euglena and amoeba, paramecium. So if you talk about multicellular means you are example, a plant, trees, rat. All right. Shapes. There are many types of cells in the bodies, and they are multicellular organisms. These cells differ in shape. So according to their numbers, their shape also differ. उनके नंबर के अनुसार उनके जो शेप, ओके, उनके आकार ढांचा जो भी होता है वो उस पर निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें इस टाइप के सेल, दिस कॉल न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ए स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन. Okay, red blood cell, it is shape of this. Smooth muscles shell, that is like this, it's shape cylindrical. Okay, बेलनाकार. And white blood cell shape is this, columnar. Okay, this just like column, so columnar epithelial cell. So just like according to that, their shapes are also divided. Okay, next we go to the topic size. Okay, so the size of many different cell of a many different sizes. The cell is living organisms may be small as a millionth of a meter. उसके जो आकार हैं, उसके साइज है मिलियंस मीटर हो सकते हैं लंबे. दैट इज माइक्रोमीटर और माइक्रोन. स्मॉलेस्ट यूनिट हम इसमें माइक्रोमीटर काउंट करते हैं. ओके, भी यूज़ करते हैं. ऐसा तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपको मीटर पता ही है, बट ये बहुत स्मॉलेस्ट है इसीलिए माइक्रो. इट मे ऑल्सो लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, ये बड़ा भी हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर के साइज का भी. सो दे हैव एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप बिफोर दे कैन बी सीन बाय अस. बैक्टीरिया cells are extremely small, and bacteria cells have a length 0.1 micrometer. इसके जो साइज़ है कितना है 0.5 माइक्रोमीटर.
In fact, bacteria mycoplasma is the smallest cell having the size सबसे छोटा, okay, that is 0.1 micrometer भी है. So if you talk about some of the cells, however big and can be seen easily with the naked eye, हम अगर कोई लेंस इस्तेमाल नहीं करते, अगर if we are not using any lens, specs, microscope, then also we can see the size of that particular cell. For example, egg of a hen, okay, quite big. ओके, द सिंगल सेल कॉल्ड हेन एग, जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल से बना होता है. ठीक है, आप ऑस्ट्रिच के जो एग है उससे आप तो बहुत ही काफ़ी परिचित है. 170 मिलीमीटर इतना बड़ा, ओके, 5 kg 6 kg वेट का. ठीक है. नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो ईच सेल हैज़ अ नंबर ऑफ अ स्मॉलर पार्ट इन इट. सभी सेल्स के पास क्या होता है, स्मॉलर पार्ट है. सम ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल, बट सर्टेन पार्ट्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो केवल प्लांट सेल में ही मिलेंगे, जो एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे. जैसे कि हम बात करें दैट इज सेल वॉल. So first point we will study the important basic part of all the cell, means these things are found in all the cell. First of all, that is cell membrane, means plasma membrane. Next one, cytoplasm, nucleus, mitochondria. This is found in both cell, plant and animal. But the parts which are present only in plant cell are cell wall, chloroplast and large vacuoles. These particular organelles found only and only in plant cell. Cell membrane, each and everything we will study one by one with full description. Cell membrane or plasma membrane, this is called selectively permeable membrane because it allow to release or accept, okay, only selective things which is good for the cell, which is useful for the cell, then it will allow, and otherwise it will reject. That's why it is called selectively permeable membrane. So every cell is covered. Those who are new, kindly like and subscribe. Okay, my more attention is for giving you the good class and explaining. That's why I'm not focusing on that subscribe and like, but if it is useful for you, those who are watching, you kindly share, like, इसको जितना हो सके आप शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को इससे मदद मिल सके. और वे लाइक और सब्सक्राइब, आप खुद इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें ताकि हमारे लिए मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो इस तरह लाते रहूँ. ऑल राइट. सो यहाँ देखिए, cell plasma membrane, okay, cell membrane or a plasma membrane, it is the outer layer which provides the shape, okay. And if you talk about here, the cell wall is there and this is cell membrane. So in plant cell, both the cell membrane as well as cell wall, both it is found, but in animal cell only cell membrane. So now we will study in a brief, okay. So every cell is covered with a thin sheet of skin which is called cell membrane or plasma membrane. The cell membrane protects the cell and also gives shape to the cell. I have explained, मैंने आपको इसको explain कर दिया है. The cell membrane has a tiny pores, just like our skin. There is small pores are there where the layers of the hair is there. That is a tiny pores which release the sweat. Just like that, tiny pores, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें. ठीक है, that only allow to enter all that water or liquid material inside the cell. Okay, the cell membrane controls the movement of substances into the cell. It only controls the movement, जो
सेल के अंदर, जो कोशिका के अंदर जो जो सब्सटेंसेस, जो वहाँ पे मटेरियल पाए जाते हैं, उनके मूवमेंट में, ठीक है, उनकी गति में ये कंट्रोल करता है. द डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, ऑक्सीजन कैन एंटर इनटू द सेल, whereas the waste product such as carbon dioxide can go out of the cell through the pores of the cell membrane. अब हम बात करते हैं ग्लूकोज, जो एनर्जी हमें मिलती है, जो ऑक्सीजन जो सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, तो उसी पोर्स के हेल्प से वो अंदर जा सकता है. और जो वेस्ट मटेरियल, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उस सेल से बाहर निकलना चाह रहा है, देन ओनली, तो उसके ही हेल्प से वो बाहर निकलेगा. ऑल राइट. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर, ऑल्सो फ्रॉम सराउंडिंग्स मीडियम. वी नो दैट देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अ सेल. एक सेल के अंदर, एक बॉडी के अंदर ट्रिलियंस मिलियंस सेल होते हैं. सो सेल मेम्ब्रेन ही एक बॉडी से, एक सेल से दूसरे सेल को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है. ऑल राइट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेल वॉल. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी सेल वॉल. सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. कोशिका भित्ति, हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति. भित्ति मीन्स दीवार, कोशिका की दीवार. और द प्लांट सेल हैव अ थिक सेल, और वहाँ सेल मेम्ब्रेन केवल एनिमल सेल, प्लांट सेल केवल प्लांट में ही मिलेगा, बट सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मिलता है. ठीक है. जो द सेल विच मेड ऑफ अ टफ मटेरियल इज कॉल्ड सेलुलोज. सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो टफ मटेरियल है, जो हार्ड होता है. सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और ये शेप भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी. हार्डनेस, जो रिजिडिटी आप प्लांट में और स्टेम में आपको दिखाई देता है, जो आप इजीली उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जो तोड़ नहीं आप सकते हैं, नहीं उसको दबा सकते हैं, अपने स्किन की तरह नहीं दबा पाएंगे ना, तो वो हार्डनेस कैसे मिलता है. ठीक है. तो इस सेल वॉल के हेल्प से ही वो हार्डनेस प्लांट में आता है. ऑल राइट. और उसको स्ट्रेंथ मिलता है. प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक मॉइस्चर etc. सो प्लांट्स क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी बात करें तो ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या आप रेनकोट पहन लेंगे, आप छाता ले लेंगे, ठंडी लगी तो घर में आ जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे. बट अगर हम बात करें सेल वॉल की, इस प्लांट की, तो प्लांट तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही प्लेस पे एक ही स्थान पे रहता है ना. तो उस केस में ए प्लांट सेल उनको इन हर सारे परेशानियों से, इन सारे दुख से उनको निपटारा करता है, इन सब से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल वॉल. इसीलिए वहाँ डबल लेयर, डबल कोटिंग किया जाता है. इसमें डबल कोटिंग नेचुरली होता है. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी. आई होप यू अंडरस्टूड. The tough cell wall present in plant cell provides the protection to the plant. Please note that cell wall is present only in plant cell. Cell wall, I have explained all these things. Next, nucleus. ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, it will be lengthy, but anyhow we'll try to cover at least few organelles. Nucleus is a large spherical organelles, and this is a shape of a nucleus. Okay, this is nuclear envelope, nuclear membrane, nuclear envelope, that is nucleolus, chromatin fibers. These all are the chromatin fibers. Okay. So nucleus control all the activity in the cell. That's why it is called brain of the cell. न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन बोला जाता है. ठीक है. उसका दिमाग वहीं कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटी को. ठीक है. अभी क्या काम करना, अभी आराम करना है, अभी खाना पकाना है या नहीं. ओके. प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन करना है कि नहीं, ये सारे कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के हेल्प से. In animal cell, nucleus lie in the center of the cell, whereas in plant cell, nucleus may be on a periphery, side में of the cell. Nucleus is largest organelle in a cell. ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ब्रेन है, हमारे शरीर में भी ब्रेन आपको कितना बड़ा और हेवी है. ठीक है. सो यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में, और यहाँ पेरीफेरी मीन्स किनारे में. ठीक है. बीच बीच में हम पिक्चर आपको दिखाते रहेंगे. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने जो साइटोप्लाज्म से उसको सेपरेट करता है. ठीक है. अलग करता है.
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ टाइनी पोर्स जस्ट लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रक्चर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था वही कैरेक्टरिस्टिक और ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी रहता है, ताकि वो भी अलाउ करता है उसी की तरह। ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद द डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स अ टाइनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। मैंने पहले ही दिखा दिया है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड तो आपने देखा उसके जैसे ही स्ट्रक्चर होता है उस क्रोमैटिन फाइबर में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस फाइबर्स बिकम्स थिक एंड आर कॉल्ड क्रोमोसोम। जब सेल्स का डिवीज़न होता है तो उस समय ये जो फाइबर होते हैं जो धागे की तरह, ओके, जो वायर की तरह जो फाइबर होते हैं मोटे हो जाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। और क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स। और जो क्रोमोसोम होता है अपने अंदर क्या रखता है, तो जीन्स तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पापा से क्या होता है कि आपकी नाक क्या आपके पापा से मिलती है, आपकी आंखें बड़ी सुंदर सुंदर हैं वो आपकी मम्मी से मिलती हैं, ओके, आपका चेहरा आपके दादाजी से मिलता है। तो इस तरह जो बच्चों का जो बच्चों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आता है उनके फेशियल शारीरिक सारे ये सभी किससे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से। तो किसकी हेल्प से, क्रोमोसोम, वो जीन में होता है। ठीक है। जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वी विल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इस अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जेली लाइक, जेल, आप मैंगो जेल और पपाया जेल इस टाइप के जेल, तो आपने चॉकलेट खाया होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्स द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का जो मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में वो भरा हुआ रहता है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वे सब कहाँ रहते हैं, उसी साइटोप्लाज्म में। लाइक गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस ऑल द थिंग्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ साइटोप्लाज्म। ओके, लुक एट साइटोप्लाज्म, यहाँ दिखाया गया साइटोप्लाज्म जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स कंटेन अदर ऑर्गेनेल सच एज दिस। नेक्स्ट वन, द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये साइटोप्लाज्म क्या है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर, अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टुगेदर दोनों के एक साथ हम बोलें तो उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड। और जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, जो एक्सप्लेनेशन दिया इस ICSE बोर्ड के बुक का, वो ईजी और सहज और सरल होगा। तो कृपया आप कमेंट करें और दूसरा वीडियो जल्दी ही आपके लिए लाएंगे। Thank you. Have a nice day. Don't forget to like, subscribe and share.